Okay, hello students, BDS first year students, how are you doing today? Can you hear me? Okay, that's good. Okay, so last time we were discussing lung compliance, right? And I told you that the newborn babies, the premature newborn babies specifically, who are who get delivered before the 28th or 27th week of pregnancy, they usually do not have enough surfactant, and they get the problem of respiratory distress syndrome, right? And of course they have to be kept in what we call oxygen tents, right, or the incubators, so that they could be saved from the calamity of no oxygen, because and no expansion of the lungs. Very little expansion of the lungs would occur, because the lack of surfactant would definitely increase the surface tension. And the surface tension, as we just discussed on that day, makes up the two-third of the elastic forces of the lungs, right? And what makes the one-third of the elastic forces of the lungs? Who will tell me that? I told you on that day that surface tension makes up the two-third of the elastic forces of the lungs. What about the rest of one-third? Okay, let's see. Lung tissue, very good. Very good. Lung tissue, and in lung tissue, what are we looking for? What are the elastic structures in lung tissue? Elastin and collagen fibers. Very good. Elastic and collagen. Beta, it's elastin and collagen fibers, right? Elastin. Okay, so that was just a brief review of a few of the important things that we covered that day. Okay, now uh, surfactant is deficient if the baby is born prematurely, right? Or in diabetic and smoker mothers, or if the surfactant is removed by alveolar macrophages, right? So there are certain conditions in which the surfactant can be really, really low, and these would be the conditions where we would come across the respiratory distress syndrome. Okay, so now, as I told you in the beginning when we were talking about the compliance, that the compliance that we are talking about is the compliance of the lungs as a separate entity, not when they are in the thoracic cage, or not when they are acting against the, or they have to work against the chest wall, right, or the rib cage, right? So compliance of lungs and thoracic cage together, that was when we said that for 1 centimeter change in 1 centimeter of water change in pressure would bring about a accommodation of, or entry of 200 ml of air into the lungs, right? But when we talk about the whole compliance, the lung compliance and the thoracic cage compliance, right? So when we talk about the compliance of lungs in relation to the thoracic cage as well, not only against the elastic forces of the lungs, right? That was against the elastic forces of the lungs. That was 200 ml per 1 centimeter of water pressure, right? Now, but if we do have the thoracic cage on top of that as well, right, and on top of the elastic forces of the lungs, we do have the thoracic cage as well, then
the force, the air is forced into the lungs a little at a time while recording lung pressure and volumes. That is one of the procedures. And twice as much pressure is required to inflate the same lungs after removal from the chest cage is necessary. So if we are dealing with the lungs alone, so we would require half the pressure. But if we are dealing with the lungs and the chest cage as well, right? So then we will be requiring double the pressure. So that means that for a given pressure, the expansion of the lungs, when they are combined with the thorax, right, with the thorax system, with the chest cage system, is half of the lungs alone. So in the lungs alone, we got to know that it was 200 ml for 1 centimeter of water change. So in this case, when we have the combined lung and thorax system, that is the chest cage system, so the compliance of the lungs would go down to 110 milliliters of volume per centimeter of water pressure change, right? So that means that the chest cage, the thoracic cage contribution for the calculation of lung compliance is very, very important, right? So it becomes half when we take both, when we take into account both these um, mechanisms or structures, then it comes to half, right? But when we are talking about the lungs alone, it gets doubled. Okay. Now coming to the uh, is a small concept: minute respiratory volume and minute ventilatory volume. What do we understand by minute respiratory volume? By minute respiratory volume, what do we understand is that how much air is taken into the lungs each minute. How much air is taken into the respiratory tract. To be more exact, we should say that how much air is taken into the respiratory tract each minute. And minute ventilatory volume means that how much air actually takes part in active gaseous exchange in each minute, right? So a minute respiratory volume, again, I would repeat my words. I would reiterate that the minute respiratory volume is the total amount of air that is taken into the respiratory tract each minute. And minute ventilatory volume would be the amount of air, the total amount of air that would be taking part in the gaseous exchange, in the actual gaseous exchange in each minute, right? Now, how can we differentiate them mathematically? The calculation for minute respiratory volume would be breathing rate into tidal volume. And what is tidal volume? Can somebody tell me what is tidal volume? And how much is the normal breathing rate? Anybody? Normal breathing rate is between 12 to 20 breaths per minute, right? That is at rest. This is the normal breathing rate. And the tidal volume is 500 milliliters of air, right? That is the tidal volume. That is the amount of air that is taken in or expired out with each normal inspiration or normal expiration. Quiet inspiration and quiet expiration. Air taken into the respiratory system and air thrown out of the respiratory system with each breath, right? That is the tidal volume. So tidal volume, that is 500 ml of air into 12, that is the normal rate of breathing, that comes out to be 600 ml, 6000 ml, right? That is 6 liters, right? So that is our minute respiratory volume. So the minute respiratory volume would be 12 into 500. 12 is the breathing rate per minute and 500 is the tidal volume. And I've told you that the tidal volume is the volume of air that is taken in or breathed out with each breath,
right? So that is the minute respiratory volume. Now, what is minute ventilatory volume? Minute ventilatory volume, by definition, I told you that it is the amount of air which actually takes part in the gaseous exchange in the lungs. Okay. Now, why is there a difference? Why do we have a difference here? Because all the air, all the air that is taken in does not take part in the active gaseous exchange. It's not that the tidal volume is 500 ml and the whole 500 ml it is taking part in the gaseous exchange. Out of it, 150 ml does not take part in the gaseous exchange. It remains in the areas of the respiratory tract where gaseous exchange is not possible. It remains in the areas of the respiratory tract where gaseous exchange is not possible, right? If we break down the respiratory tract into different segments and into different structures, we come to know that right from the bronchi, right, from the two principal bronchi and up to the alveoli, right, we have 22 divisions. Out of these 22 divisions, 15 are such, the initial 15 are starting from the bronchi. Initial 15 are such where no gaseous exchange takes place. And the lower 7 out of these 22, they are the ones where actual gaseous exchange takes place, right? So what is happening that though we are taking in 500 ml of air with each breath into the respiratory tract, but only out of that 350 ml are actually taking active part in the gaseous exchange, and 150 of that is not taking part into the gaseous exchange, because that 150 ml is in the areas of the respiratory tract where no gaseous exchange can take place. Now, this area, the air in these areas where no gaseous exchange can take place, is called anatomical dead space, right? This is the concept of dead space, right? That is what I have just told you on this slide. 22 divisions of trachea, 15 are without any gaseous exchange, 7 have gaseous exchange capability, and that is, these 15 are representing anatomical dead space. Now, there is another term which is known as physiological dead space. Physiological dead space is something, ideally it should not be there. Ideally it should not be there. Why? Because physiological dead space is due to those alveoli which are not functioning normally and which are not taking part in the gaseous exchange. Ideally, all alveoli should be taking part in the gaseous exchange, right? But practically speaking, not all the alveoli they take part in, even in a physiological person, even without a pathology, right? Not all the alveoli they take part in the gaseous exchange. So this part of these alveoli which do not take part in the gaseous exchange, even in a physiological person, these are known as physiological dead space, right? So ideally, anatomical dead space and physiological dead space, they should be the same, because there should be no alveoli which should not be taking part in the gaseous exchange. But practically speaking, it does occur, right? Now, so what is then minute ventilatory volume? Now, keeping in view the anatomical dead space, which is a mandatory thing, the physiological dead space, it can vary. At some point of time, maybe, just for example, maybe 100 alveoli are not taking part. At some other point of time, maybe 1,000 alveoli are not taking part in the gaseous exchange. But the
areas of respiratory tract where there is no gaseous exchange taking place, for sure, they comprise the anatomical dead space. Okay? So this anatomical dead space air has to be subtracted from the 500 ml, and that is, I have told you, is 150 ml. So when we take out 150 ml out, we take 150 ml out of 500 ml, we are left with 350. So minute respiratory volume was 12 into 500. So minute ventilatory volume would be 12 into 350, and that would come out to be 4200 ml, right? So this is the difference between the minute respiratory volume and minute ventilatory volume. Okay, now we need to go to the other lecture. I'll just go on that. Now, there is an important topic. This is lung volume and capacities. Again, a good university question, important university question. That is why I want to take it up first, and the rest of the things we will do later, right? Though in today's lecture, but later. Now, lung volume and capacities. There are 4 lung volumes and 4 lung capacities. Now, the volumes are tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and residual volume, right? The capacities would be inspiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity, and total lung capacity. So there are 4 volumes and 4 capacities which are important when we talk about the lung volumes and capacities. Now, the important thing about these volumes and capacities is that we need to know their exact definition. We need to know their exact definition. We need to know their exact amount, their volume, right? In terms of milliliters, right? In terms of milliliters, we need to know their exact amount, right? So first of all, coming to the definitions, and with that we will go with the amounts, their actual volumes. So the tidal volume is the volume of air inspired or expired with each quiet breath. Is the volume of air inspired or expired with each quiet breath. And this is 500 ml, I've told you before. And on this diagram, it's an important diagram. On this diagram, this is the tidal volume. This from here to here is quiet inspiration. From here to here is quiet expiration. From here to here, it is 500 ml. From here to here, again, it is 500 ml. So here we have taken in 500 ml of air. From here to here, we have breathed out 500 ml of air, right? Acha ji. Okay, so this is what it is. Okay, next is inspiratory reserve volume. Now, inspiratory reserve volume is the maximum amount of air which can be inspired over and above the normal tidal volume. It is the maximum amount of air that can be inspired over and above the normal tidal volume, and it is 3000 ml. If I show you in this diagram, it would be like this. We said it is the maximum amount of air which can be inspired over and above the tidal volume. So here ends the tidal volume,
right? Normal inspiration, quiet inspiration, and from this point to this point is the inspiratory reserve volume from here to here, and it is 3000 ml. What somebody has to say, let's see that. नींद आ रही है तो बेटा फिर छट्टा मारो गर्म पानी का, ठीक है, दैट माइट हेल्प। और अगर उससे भी ना आए तो फिर उबलते हुए पानी का मार लेना। ओके, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहां से कहां तक हुआ? आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम व्हेन वी हैव डन द क्वाइट इंस्पिरेशन, वहां से लेके मैक्सिमली जितना हम इंस्पायर कर सके, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ओके जी, नाउ कमिंग गोइंग टू द नेक्स्ट वॉल्यूम, दैट वुड बी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. That is the maximum amount of air that can be expired after the end of normal tidal expiration, and it is 1100 ml. इसी डायग्राम पे ये कहाँ शो हो रहा है? ये शो हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक. दिस इज द मैक्सिमम amount of air that can be expired after the normal quiet expiration. यानी कि नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो जितना हम एयर एक्सपायर कर सकते हैं वो ये है, डायग्रामेटिकली ये है, और मैथमेटिकली 1100 ml है, ठीक है। अच्छा, रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, कि आप जितनी मर्जी जोर से ब्लो आउट कर लें, ये 1200 ml जो है ये लंग में रहेंगे हर वक्त, ये कभी नहीं निकलेंगे लंग से, ठीक है। इसीलिए इसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इट्स द रेसिड्यू इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, ये लंग में रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है 1200 ml। ये मैंने आपको दिखा दिया इस डायग्राम पे। इट इज फ्रॉम हेयर आफ्टर द क्वाइट एक्सपिरेशन, अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एंड दैट विल एंड हेयर, ठीक है, एंड इट वुड बी 1100 ml। चलिए अब हम चलते हैं कैपेसिटीज पे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज, अब इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है जब हम कैपेसिटीज की बात करते हैं, क्योंकि कैपेसिटीज अमूमन क्या हैं? कैपेसिटीज आर द एक्यूमुलेशन ऑफ और एडिंग अप ऑफ द वॉल्यूम्स। दो वॉल्यूम या तीन वॉल्यूम मिलके एक कैपेसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है इसकी एक तो डेफिनेशन है। अब यहाँ पे तीन चीजें आ गई, वहां हमने दो चीजें याद करनी थी वॉल्यूम में, एक उसकी डेफिनेशन और एक उसकी एक्चुअल अमाउंट इन मिलीलीटर्स। यहाँ पे हमें तीन चीजें याद करनी है, एक इसकी डेफिनेशन, एक इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये किन किन चीजों से मिलके बनती है ये कैपेसिटी, और तीसरा उसका वॉल्यूम एक्चुअल इन फिगर में क्या है, फिगरेटिवली वो क्या है, इनके 3500 ml है जैसे। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ क्वाइट एक्सपिरेशन, ठीक है। ये देखो क्या मैंने कहा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या चीज है? ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर अ क्वाइट एक्सपिरेशन। यहां क्वाइट एक्सपिरेशन खत्म हुई इस पॉइंट पे, तो यहां से जब हम इंस्पायर करना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम वो हम यहां तक जाते हैं, ठीक है। कौन से दो कंपोनेंट्स बनेंगे इसके? एक टाइडल वॉल्यूम बनेगा और एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बनेगा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए हमें, इसका ये ब्रेकअप भी आना चाहिए हमें, और इसकी हमें अमाउंट भी आनी चाहिए, तीनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वी शुड बी नोइंग ऑल दीज थ्री थिंग्स। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आगे जब डिजीजेस वगैरह में जाओगे आप तो वहां भी आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हम जो है वो डायग्नोज करते हैं इसकी बेसिस पे, या प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता है इसकी बेसिस पे। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द amount of air which remains in the lungs after the quiet expiration,
अगर मैं फिर यहाँ वापस जाऊं, सो दिस इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। अब मुझे देखो, यहां पे आपका क्वाइट एक्सपिरेशन हो गई आपकी, ठीक है। क्वाइट एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग में रह जाती है वो किन किन दो चीजों से बनती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फिर वही बात, डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एंड डेफिनेशन इज इट इज द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द क्वाइट एक्सपिरेशन। और ये कितनी होगी? एंड इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। और वो कितना कितना है? 1200 रेजिडुअल वॉल्यूम है और 1100 जो है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इट वुड बी 2300 ml, ठीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वाइटल कैपेसिटी भी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, तीन वॉल्यूम्स से मिलकर बनती है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। और ये 4600 ml होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये तो हमने, इसका ब्रेकअप भी हमने देख लिया कि इट इज कंप्राइजिंग ऑफ दीज थ्री वॉल्यूम्स। अगर डायग्राम पे चले जाएं तो ये ऐसे हमें नजर आती है, ये देखें, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीन इसमें वॉल्यूम्स आ जाएंगे यहां से लेके यहां तक। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, so it is the maximum amount of air that can be inspired after a forceful expiration. It is the maximum amount of air, vital capacity जो है, vital capacity जो है ये क्या होगी? It would be the maximum amount of air that can be expired आफ्टर, फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। यानी कि पहले आप एक डीप लंबा सांस अंदर लेंगे, ठीक है, एक डीप लंबा सांस आप अंदर लेंगे मैक्सिमम, और उसके बाद आप उसको फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे। तो वो जो फोर्सफुली एक्सपायर्ड एयर है वो बनती है वाइटल कैपेसिटी। जब आप डीप लंबा सांस ले लेते हैं अंदर, ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, और इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। सो दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर अ फोर्सफुल डीप इंस्पिरेशन, ये वाइटल कैपेसिटी है, एंड इट इज 4600 ml। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग कैन अकोमोडेट। It is the maximum total amount of air that the lung can accommodate, और ये 600 ml, 6000 ml, सॉरी 6 लीटर्स। गाइटन ने इसको 5800 ml लिखा हुआ है, कुछ बुक्स इसको 6000 ml लिखती हैं, डजंट मैटर। आप 5800 ml लिखें या 6000 ml लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लंग्स कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स हैं, ये हम कैसे मेजर कैसे करते हैं? ये हम मेजर करते हैं, एक अपरेटस है। अगर आप, जब आपका अल्लाह करे कि जितनी जल्दी हो सके हम रूटीन में रेगुलराइज हो जाएं, तो आप इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसको कि स्पायरोमीट्री कहते हैं, ठीक है। तो स्पायरोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि उसमें हम जो ज्यादातर हैं वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज जो हैं, वो बड़ा डिपेंड करती हैं इस बात पे कि आपने कितना इंस्पायर किया और फिर कितना एक्सपायर किया। इसलिए वो चीजें जो जिनमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, जिन कैपेसिटीज में रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, या रेजिडुअल वॉल्यूम इटसेल्फ, वो इससे मेजर नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, ठीक है,
तो रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते तो जो दो लंग कैपेसिटीज जो जो जिनका के कंपोनेंट है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका मतलब है हम वो भी मेजर नहीं कर सकते इससे डायरेक्टली। हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें आ जाएगी एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि इट इज कंप्राइजिंग ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एक हम वो नहीं कर सकेंगे और एक हम टोटल लंग कैपेसिटी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट इज कंप्राइजिंग ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी इन चार वॉल्यूम से, चारों वॉल्यूम से मिलकर बनती। ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हम स्पायरोमीट्री पे मेजर नहीं कर सकते। द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैन बी मेजर्ड ऑन दी स्पायरोमीट्री। और ये स्पायरोमीटर का ही ग्राफ दिया हुआ है उसने। इसी किस्म का ग्राफ आप भी बनाएंगे अगर आप ये एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो। ठीक है, ये उसी का ही ग्राफ है, ये स्पायरोमीटर का ही ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमें आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमने कर लिया, पहले कर लिया हमने, डेड स्पेस भी हमने कर लिया, एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कर लिया, फिजियोलॉजिकल भी कर लिया। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, इसलिए हमें अब दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी हैव डन दैट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजवेज। ठीक है, कि जो रेस्पिरेटरी पैसेजवे है, जो रेस्पिरेटरी, जिसमें के ट्रैकिया भी आएंगे, ब्रोंकाई भी आएंगे, ब्रोंक्यूल्स भी आएंगे, और ऊपर का जो एरिया है, ठीक है ना, जिसमें मतलब ये नोज भी आ गया, ठीक है, और फेरेंक्स भी आ गया। ये जो एरियाज हैं, ये जो हैं, इनका क्या रोल है? ठीक है, नाउ trachea, bronchi and bronchioles are responsible for the passage of air to the lungs. ठीक है, now it's very important कि जो हमारे respiratory passageways हैं वो ओपन रहें, वो पेटेंट रहें। अगर वो पेटेंट नहीं रहेंगे तो पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू द एल्वियोलाई जो है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो ट्रेकिया है हमारा, उसमें बहुत सारे कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ठीक, ये कार्टिलेज रिंग्स जो हैं, दे एक्सटेंड अबाउट 5/6 ऑफ द वे अराउंड द ट्रेकिया एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। कार्टिलेज होता है ना, फर्म होता है काफी। ठीक है, तो ये एकदम कोलैप्स नहीं हो जाता। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा जो सारा रेस्पिरेटरी पैसेज है अप टू एल्वियोलाई, ठीक है, इसमें कोलैप्सिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके इलास्टिक टिश्यू की वजह से इसमें कोलैप्सिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको जो हमारे अपर जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेजवे है विच इज कंप्राइजिंग ऑफ ट्रेकिया, उसको अगर आप आगे, आप कुर्बानी की ईद भी आ रही है, तो अगर आप देखेंगे बकरा ज़िबा होते हुए, तो आप देखेंगे कि उसमें से जब लंग्स निकाल ले जाते हैं तो उसके साथ ट्रेकिया भी निकलता है। ठीक है, और उसमें कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। आपने देखा ही होगा वो, अगर सबने नहीं देखा तो कुछ ने तो जरूर देखा होगा, कि जब लंग्स निकलते हैं उसके कुर्बानी के जानवर के, तो उसके साथ ऊपर ट्रेकिया भी अटैच्ड होता है, और वो ट्रेकिया की आगे दो डिवीजन्स बनती हैं, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, और वो एक लंग में वो चली जाती है, लेफ्ट ब्रोंकस जो लेफ्ट लंग में चली जाती है, राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग में चला जाता है, और वो आगे जाके फिर उसकी वही जो डिवीजन, मैंने 22 डिवीजन्स की बात की थी, कि उसी की आगे सारी डिवीजन्स बनती जाती। ठीक है, उन्हीं को अब उनको थोड़ा सा भी हम पढ़ेंगे भी कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो ट्रेकिया है, जो पहली चीज है, उसमें कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, जो कि उसके 5/6 ऑफ द वे ऑफ द ट्रेकिया जो है वो उसको होते हैं और उसको कोलैप्स नहीं होने देते। ठीक है, नाउ इससे आगे ब्रोंकाई आ जाते हैं। ट्रेकिया से आगे हमने कहा ना कि ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई आ जाते हैं।
ब्रोंकस आ जाते हैं. Now walls of the bronchi have less extensive curved cartilage plates. ठीक है, ट्रेकिया से कम होंगी लेकिन इतनी कम नहीं होंगी कि वो कोलैप्स कर जाए. ठीक है, और वो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिजिडिटी देती हैं. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम this arrangement allows lungs to expand and contract. ठीक है, ये अरेंजमेंट जो है ये लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ इंटरफियर नहीं करता. ठीक है, ये जो ब्रोंकाई हैं इनकी वॉल्स जो हैं इसमें लेस कार्टिलेज होता है, लेस कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं, जिसका कि फायदा ये होता है कि ये उसको रिजिडिटी भी देती हैं एंड एट द सेम टाइम उस लंग्स की एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को रोकती भी नहीं है. ठीक है, नाउ जैसे जैसे हम डाउन द रेस्पिरेटरी पैसेज जाते जा रहे हैं तो कार्टिलेज जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है, so cartilage plates become progressively less extensive in the later generations of the bronchi. ठीक है, तो and they are not usually present in the bronchioles which have diameters less than 1.5 millimeters. वो bronchioles जिनका डायमीटर लेस देन 1.5 मिलीमीटर होता है उसमें ये अमूमन नहीं होता कार्टिलेज. ठीक है, उसमें कार्टिलेज प्लेट्स नहीं होती. ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें अब हम आ गए हैं मस्कुलर वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड इट्स कंट्रोल. ऑल एरियाज ऑफ द ट्रेकिया ब्रोंकाई जहां पे कि कार्टिलेज, अब सारी तो कार्टिलेज प्लेट नहीं ना होती, कार्टिलेज प्लेट होती है फिर थोड़ा सा गैप आता है फिर एक नेक्स्ट कार्टिलेज प्लेट आती है. तो इन दो जो सक्सेसिव कार्टिलेज प्लेट्स हैं इनके दरमियान में क्या है, स्मूथ मसल. ठीक है, नाउ अब जब हम ब्रोंक्यूल्स तक आ जाते हैं तो वॉल्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स स्पेसिफिकली विच आर लेस देन 1.5 मिलीमीटर्स इन डायमीटर, उनमें जो है वो उनकी वॉल्स जो है वो एंटायरली स्मूथ मसल होती हैं. ठीक है, मोस्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर एन एक्सेप्शन. सिर्फ ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये एक एक्सेप्शन है, बिकॉज यहां पे स्मूथ मसल नहीं होता. ठीक है, यहां स्मूथ मसल बहुत कम होता है और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं दे आर मेनली पल्मोनरी एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग फाइब्रस टिश्यू एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एक्सेप्शन है. ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, जब स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स की हम बात कर रहे होते हैं जो कि जस्ट एल्वियोलाई से पहले आते हैं, तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये एक एक्सेप्शन है कि जिनमें स्मूथ मसल नहीं होता, बल्कि इनमें क्या होता है, पल्मोनरी एपिथेलियम होता है और उसके अंडरलाइंग एक फाइब्रस टिश्यू होता है और बहुत ही छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो है वो स्मूथ मसल की होती है. ठीक है, नाउ narrowing of the smaller bronchi and larger bronchioles. Narrowing of the smaller bronchi and larger bronchioles. Bronchi पहले आएंगे और उसके बाद bronchioles आएंगे down the order. ठीक है, अगर हम रेस्पिरेटरी उसमें चल रहे हैं, पैसेज में चल रहे हैं, तो ब्रोंकाई पहले आएंगे, सबसे पहले ट्रेकिया आएगा, फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस आएंगे, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस आएंगे और उसके बाद स्मॉलर ब्रोंकाई आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट होंगे, पहले लार्जर ब्रोंक्यूल्स आएंगे और फिर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स आएंगे और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे. ठीक है, इस तरह से डाउन द ऑर्डर हम चलते हैं. तो वो ये कह रहा है कि नैरोइंग ऑफ द स्मॉलर ब्रोंकाई एंड लार्जर ब्रोंक्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस ऑफ द लंग्स. ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस ऑफ द लंग्स का मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस ऑफ द लंग्स में इंस्पिरेशन में इतना बड़ा इशू नहीं होता, एक्सपिरेशन में बहुत ज्यादा इशू आता है. जब हम एयर एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि जो स्मॉलर ब्रोंकाई हैं और जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए narrowing of the small bronchi and larger bronchioles is a major cause of obstructive diseases of the lungs.
ठीक है, अगर इनमें नैरोइंग आ जाए, किसमें, स्मॉलर ब्रोंकाई में और लार्जर ब्रोंक्यूल्स में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ द लंग्स हो जाती है, जिसमें कि मैंने बताया कि इंस्पिरेशन में इतना इश्यू नहीं होता, एक्सपिरेशन में बहुत ज्यादा इश्यू होता। ठीक है, नाउ resistance to airflow in the bronchial tree. Normally, less than 1 centimeter of water pressure gradient from the alveoli to the atmosphere is sufficient to cause enough airflow for quiet breathing. अगर quiet breathing की बात हम करें, ठीक है, तो 1 centimeter of water pressure gradient from the alveoli to the atmosphere, ठीक है, वो sufficient है airflow को to take care of the airflow during quiet breathing. ठीक है, अब maximum resistance to airflow occurs not in the minute air passages of the terminal bronchioles. जो हमारा ख्याल ये एक समझ में ये आती है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनका पैसेज बहुत छोटा होगा, इसलिए शायद मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो जो है वो वहां मिलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, maximum resistance to airflow occurs not in the minute air passages of the terminal bronchioles, but it happens or it occurs in some of the larger bronchioles and bronchi near the trachea. चाहे उनका डायमीटर ज्यादा होता है, जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई हैं उनका डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वहां पे हमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती है, एयर को रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू दी स्मॉलर bronchioles. उसकी रीजन ये है कि high resistance in the larger bronchioles and bronchi is due to the fact that they are few in number. वो बहुत थोड़े होते हैं in comparison with the approximately 65,000 parallel terminal bronchioles. तो एयर जो है वो इन 65,000 पैरेलल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जब एंटर होती है, तो वो बहुत थोड़ी एयर एट अ टाइम एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल में एंटर होती है, एंड दैट इज व्हाई उसको को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, सो एट अ टाइम हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल में से बहुत ही छोटी एक अमाउंट ऑफ एयर ने पास होना होता है, इसलिए उसको वहां पे रेजिस्टेंस नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड, जिन ब्रोंकाई का डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, वो चाहे उनका डायमीटर ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उनका नंबर बहुत कम है, इसलिए वहां पे हमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलती। ठीक है, तो ये बात याद रख लें। ठीक, अच्छा, एक और चीज इससे पहले मैं थोड़ा वापस जाऊंगा, ताकि मैं आपको थोड़ा सा वर्क ऑफ ब्रीदिंग के बारे में भी बता दूं कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, अगर हम क्वाइट इंस्पिरेशन की बात करें, और एक्सपिरेशन, क्वाइट एक्सपिरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज 3 to 5% ऑफ टोटल एनर्जी यूज्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट। अब हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, वो कितनी होती है, वो 3 to 5% ऑफ द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय द बॉडी है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सर्शन, यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वेंटिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब व्हेन बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दे बिकम एक्टिव, क्योंकि जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाती है। क्वाइट एक्सपिरेशन तो पैसिव है, लेकिन जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है वो एक्टिव है। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग एक्सर्शन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जबकि ये दोनों ही एक्टिव हो जाती हैं, इंस्पिरेशन भी और एक्सपिरेशन भी, तो एनर्जी यूटिलाइजेशन या वर्क डन या वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है ये ऑलमोस्ट 50 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज 50 टाइम्स बढ़ जाता है। नाउ अब ये जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, इसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ ब्रीदिंग है। पहला जो है, इट इज कंप्लायंस वर्क, इट इज द इलास्टिक वर्क। ठीक है, जो आपका इलास्टिक टिश्यू है लंग का, ठीक है, जो कंप्लायंस को डिटरमिन करता है, उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वो
क्या क्या कहलाता है, इलास्टिक वर्क या कंप्लायंस वर्क। ठीक है, ये बढ़ेगा किसमें, किन डिजीजेज में, जिनमें फाइब्रोसिस हो जाती है, और टीबी उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल। ठीक है, तो पहली टाइप ऑफ वर्क क्या थी, कंप्लायंस वर्क, इलास्टिक वर्क। ठीक है, ये इसमें बढ़ेगा कि ये किसमें, उन डिजीजेज में जिनमें फाइब्रोसिस हो जाती है, क्योंकि जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी। ठीक है, इतनी रिजिड हो जाएगी कि देखो एक बात याद रख लो, जो एरिया बॉडी का फाइब्रोज्ड हो जाता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो लंग का अगर कोई एरिया फाइब्रोज्ड हो गया तो इसका मतलब है वो नॉन फंक्शनल हो गया, वो एक्सपैंड नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसको एक्सपेंशन की तरफ ले जाने के लिए जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग है। दूसरा है एयरवे रेजिस्टेंस। अभी जैसे हमने रेजिस्टेंस की बात की थी कि जो हमारे हैं लार्जर ब्रोंकाई हैं या जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स हैं, जो स्मॉलर ब्रोंकाई हैं या जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे एयरवे की रेजिस्टेंस किसी वजह से बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लंग कंप्लायंस हमारी कम हो जाएगी। ठीक, जाहिर है अगर हमारे एयरवे की रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि हमारा लंग ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि ज्यादा एयर ही अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐसे पेशेंट में इंक्रीज्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जब हम कल वो ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जब बढ़ता है तो वो इंस्पिरेशन को एनकरेज करता है। ठीक है, जब भी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है, और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या था, एल्वियोलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर का डिफरेंस, दैट वाज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। वो जब भी बढ़ता है वो इंस्पिरेशन को एनकरेज करता है। ठीक है, तो जब भी एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, यानी कि एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे एयरवे रेजिस्टेंस वर्क कहते हैं। ठीक है, और ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में एयरवे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से इसमें वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये सीओपीडी जो है ना, इसका मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, इसमें अस्थमा भी आ जाता है, इसमें एम्फीजीमा भी आ जाता है। ठीक है, दोनों आ जाते हैं, तो इसमें वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और उसको ओवरकम करने के लिए वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा आ गया टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। ठीक है, टू ओवरकम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड पार्ट इज यूज्ड टू ओवरकम इलास्टिक टिश्यूज। ठीक, ये भी सीओपीडी में बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली एम्फीजीमा। ठीक है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है टू एयर फ्लो, ये वो वर्क है, टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, ये उसको ओवरकम करने के काम आता है। ठीक है, तो तीन टाइप्स के वर्क्स हैं जो जिनको के जो के लंग के टोटल जो है वो लंग का जो टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल लंग वर्क जो है उसको कंप्राइज करते हैं। कौन कौन से, पहला हमने कहा कंप्लायंस वर्क या इलास्टिक वर्क, दूसरा हमने कहा एयरवे रेजिस्टेंस वर्क, और तीसरा है टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। ठीक है, तो ये टोटल जो लंग का वर्क ऑफ ब्रीदिंग है ये उसको कंप्राइज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा आगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा ये भी मैं आपको पहले बता दूं। ऑफ कोर्स एक तो यह कि हम रिवीजन क्लासेस में हैं, दूसरा यह है कि हम ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर भी चुके हैं, तो इसलिए हम कुछ चीज़ें जो हमें वो तेज़ चलना पड़ेगा। ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, हम पहले उसको देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉफ और स्नीजिंग, ये दो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, जो कि जिनको कि रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस में डाल दिया जाता है। ठीक है, कॉफ जो है ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ठीक है, कोई फॉरेन मैटर या कोई और इरिटेंट, कोई केमिकल इरिटेंट हो सकता है। ठीक है, इट कैन इनिशिएट द कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, फॉरेन मैटर और अदर कॉजेज ऑफ इरिटेशन,
कोई भी रीजन इरिटेशन की, वो इसको कॉज कर सकती हैं। अब इसमें लेरिंग्स एंड करीना आर स्पेशली सेंसिटिव। करीना क्या होता है बता सकता है? व्हाट इज करीना? एनाटॉमिकली कौन इसको डिफाइन कर सकता है कि करीना क्या होता है? ये बेटा वो पॉइंट है जहां पे ट्रेकिया बाइफरकेट करता है, उसको करीना कहते हैं। ठीक है, सो लेरिंग्स एंड करीना आर स्पेशली सेंसिटिव and the terminal bronchioles are even the alveoli are sensitive to corrosive chemical stimuli such as sulfur dioxide gas or chlorine gas। ठीक है, तो कफ होने की ये वो रीजंस बता रहा है। ठीक है, कि कोई भी स्टिमुलस, ठीक है, वो स्टिमुलस जो है वो इवन मैकेनिकल भी हो सकता है, वो स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है। कोई भी चीज चाहे वो मैकेनिकली इरिटेंट हो या केमिकली इरिटेंट हो, ठीक है, वो ये रिफ्लेक्स को, कफ रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, नाउ इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकल स्टिमुलस को भी और केमिकल स्टिमुलस को। ठीक है, एफरेंट इंपल्सेस यहां से कहां जाती हैं? थ्रू वेगस नर्व टू कफ सेंटर इन मिडुला। जो एफरेंट इंपल्सेस हैं वो इस जगह से, जहां भी स्टिमुलस आता है, इरिटेंट स्टिमुलस आता है, वहां से वो इंपल्सेस किसके थ्रू जाती हैं? थ्रू वेगस नर्व टू कफ सेंटर इन मिडुला। ठीक है, वो कफ सेंटर इन मिडुला में जाती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये होता कैसे है, हम कफ कैसे करते हैं? सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो ये है कि 2.5 लीटर्स ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड। एक डीप ब्रेथ आता है, 2.5 liters of air is inspired and glottis is closed। ठीक है, glottis close हो जाता है। vocal cords जो हैं वो भी they shut tightly। vocal cords भी tightly shut हो जाते हैं, approximate हो जाते हैं। abdominal muscles and other expiratory muscles जो हैं they contract। ठीक है, जब ये हो जाता है तो इसके बाद abdominal muscles, ये जो हमारे रेक्टा हैं, rectus abdominis muscles जो हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली। और जो दूसरे एक्सपिरेटरी मसल्स हैं, दूसरे एक्सपिरेटरी मसल्स में क्या आता है? डायफ्राम आएगा। ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बड़े फोर्सफुली। ठीक है, एल्वेलर प्रेशर जो है वो 100 mmHg को भी एक्सीड कर जाता है। जो एल्वेलर प्रेशर है वो 100 mmHg को भी एक्सीड कर जाता है। और एयर एक्सप्लोड करती है, एयर इज एक्सप्लोडेड आउट। कहां से? थ्रू माउथ आती है एयर। ठीक है, और जो पोस्टीरियर नेयर्स हैं, वो पोस्टीरियर नेयर्स जो कि माउथ से, जो बिल्कुल जस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी से नोज में रास्ता दे रहे होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, दे आर क्लोज। पोस्टीरियर नेयर्स जो हैं वो उस पैसेज को बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि नाक में ना जाए। इसीलिए जब हम कफ करते हैं तो हम एयर को कहां से निकालते हैं? हम माउथ से निकालते हैं। ठीक है, नाउ द वेलोसिटी ऑफ दिस एक्सप्लोडिंग एयर व्हिच इज एक्सप्लोडिंग आउट ऑफ द माउथ इज यूजुअली फ्रॉम 70 to 100 miles per hour। ठीक है, ये 70 से 100 miles per hour की होती है, और इसकी वजह से इरिटेंट जो है इट इज थ्रोन आउट। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि यार इस बंदे को इरिटेंट कफ है, इसके बार बार जो है ना वो गले में इरिटेशन होती है जिसकी वजह से ये कफ करता है। ड्राई कफ होती है अमूमन, जो इरिटेंट कफ होती है ना अमूमन वो ड्राई कफ होती है। ठीक, उसके साथ अमूमन स्पूटम नहीं होता। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म कफ का। अब हम स्नीज पे आ जाते हैं। स्नीजिंग है बिल्कुल कफ की तरह का रिफ्लेक्स है, लेकिन इसमें यह होता है कि इट इन्वॉल्व्स द नेजल पैसेजवेज इंस्टेड ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस। इसमें उसमें तो देखो कफ में क्या होता है कि पूरी पहले हम इंस्पायर करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में 2.5 लीटर्स ऑफ एयर, और फिर वो एक्सप्लोड करती। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो इतनी डीप एयर नहीं जाती। ठीक है,
is it involves the nasal passageways instead of the lower respiratory passages. Now, irritation in nose, mechanical or chemical. ठीक है, इरिटेशन इन नोज, मैकेनिकल और केमिकल. अब वहां पे इरिटेशन जो है वो इवन अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होगी, कफ में, तो फिर उसकी वजह से कफ हो जाएगी. ठीक है, अगर लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में जाके भी इरिटेशन होगी, चाहे मैकेनिकल है चाहे केमिकल है, तो द पर्सन विल कफ. ठीक है, बंदा कफ करनी शुरू कर देगा. लेकिन स्नीजिंग में जो इरिटेशन है वो यूजुअली नोज के एरिया में होती है. ठीक है, नाउ एफ्रिन इम्पल्सेस इसकी जो है वो कहां से आती हैं, उसकी कहां से आई थी, थ्रू उसकी एफ्रिन इम्पल्सेस जो है वो गई थी थ्रू वेगस नर्व. इसकी जाती हैं थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व. उसकी कहां गई थी, इन द कफ सेंटर इन द मिडल्ला. इसकी कहां जाएंगी, इन द स्नीजिंग सेंटर इन द मिडल्ला. ठीक है, यूवुला इज डिप्रेस्ड, सो एक्सपेल्ड एयर थ्रू नोज एंड माउथ. ठीक है, इसमें नोज और माउथ ऑलमोस्ट दोनों से ही एयर आती है. ठीक है, इसमें नोज और माउथ दोनों से एयर आती. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्सेस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब एक और बात इस चैप्टर में जो उसने लिखी हुई है, वो उसने लिखी हुई है रिगार्डिंग वोकलाइजेशन, कि जो हम बोलते हैं ये हम कैसे बोलते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है. देखो, एक तो इसका मैकेनिज्म ब्रेन में है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है. ठीक है, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है. ठीक, फिर वर्ड फॉर्मेशन एरिया है. ठीक है, हमारे ब्रेन में जो वर्ड फॉर्म करता है, हमें उसको फॉर्म करने में हमें हेल्प करता है. अब वो तो सारा कुछ हो गया, लेकिन ये जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये जो स्पीच है, ठीक है, ये स्पीच जो है ये इसके आगे दो पार्ट्स बन जाते हैं. ठीक, एक बन जाती है साउंड की प्रोडक्शन और एक बन जाती है एक्चुअली लफ्जों को जो हम बनाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन. ठीक है, तो जो साउंड प्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं बेसिकली फोनेशन, और जो हमारी वर्ड फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन. ठीक है, जो हमारी साउंड प्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं फोनेशन, और जो हमारी वर्ड फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन. अब कौन सी चीजें जो है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं? ऑफ कोर्स लंग्स करते हैं, क्योंकि हम, एक बात याद रख लो, हम बोल सिर्फ तब सकते हैं जब हम एक्सपायर कर रहे हैं. इंस्पायर करते हुए हम वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते. क्या टाइम तो नहीं हो गया? जो बड़ी जल्दी से किसी ने चैट में कुछ लिखा है, टाइम अप. मुझे पता था, और इससे ज्यादा क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता था. ठीक है, अच्छा चलो, बस एक दो मिनट ले रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं ले रहा. ठीक है, मैक्सिमम एक दो मिनट. बस सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन सी चीजें जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और कौन सी चीजें जो है उस साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करती हैं. ठीक है, तो जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीजें, ऑफ कोर्स द एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, उसकी आगे साउंड प्रोडक्शन कौन करता है? वो वोकल कॉर्ड्स करते हैं. वोकल कॉर्ड्स आपके जितने हैवी होते हैं उतनी जो है वो ग्रेव साउंड आती है, हैवी साउंड आती है. जितने थिक होते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स, जितने आपके वोकल कॉर्ड्स स्लिम होते हैं, उतनी साउंड जो है वो श्रिल आती है, हैवी साउंड नहीं आती. इसीलिए फीमेल्स में साउंड जो है वो श्रिल आती है, मेल्स में साउंड जो है वो हैवी होती है. क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है इट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो वोकल कॉर्ड्स को भी हैवी कर देता है. वहां इतनी प्रोटीन सिंथेसिस करवा देता है कि वो हैवी हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई एट प्यूबर्टी जो मेल की वॉइस है वो चेंज होना शुरू हो जाती. ठीक है, और फीमेल्स की वॉइस जो है वो चेंज नहीं होती. ठीक, अच्छा, ये तो हो गया साउंड प्रोडक्शन. यानी कि साउंड प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एयर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है वोकल कॉर्ड्स की, तो साउंड प्रोड्यूस होती. इस साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूं. उसमें सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, टंग है, टीथ हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि आपके जो
उसकी वर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जो हमें चीज़ों को प्रोनाउंस करने में हेल्प करती हैं, कि हमने एक अल्फ़ाबेट की साउंड इसकी क्या होगी, वो हम कैसे सीखते हैं या कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे यही आर्टिकुलेशन, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन में क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं, हमारा सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, टंग, बकल कैविटी ऑन दी होल एंड टीथ, ये चीज़ें हैं जो कि हमारी उसको प्रोनाउंस करने में हमें हेल्प करती है, यानी कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। विद दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड। अब नेक्स्ट चैप्टर मुझे नहीं पता कौन शुरू करेगा, आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ, बट हूसोएवर, टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जिसको नींद आ रही थी